morning students, I'm Sonali Tripathi from Government High School, Toto. Today we are going to discuss about figures of speech. Figures of speech is actually the plural form of figure of speech. Actually, we have gone through many poems and stories from the beginning of our life. But now it is important to understand the terms hidden in those stories and poems that we have gone through or we will go through. So, first we should understand or we should know the definition of figure of speech. What is figure of speech? Figure of speech is a word or expression figure of speech is a word or expression. What? Expression having different meanings. From its literal or original terms or term or meanings. Actually, it may be in different forms, but we have to understand all of them one by one. First of all, the most easiest form of figures of speech is simile. Simile, okay? Simile. What is simile? Simile is a direct comparison between two unlike things, but those unlike things should have one thing in common. Simile, again I'm repeating, simile is a direct comparison between two things that have one thing in common. Generally, it is very easy to find simile in the poem or in the story because it uses as, like, etc. to compare. For example, she is laughing like a man. She is laughing like a man. Here we find a word like. It means it is a simile. Wherever you will find the word like and you have to find it, it is given, find the figure of speech or poetic device or literary terms. All these are the name of figure of speech, literary terms, figure of speech and poetic device. So, what is the figure of speech in this line? Is simile because like is used here. Now, the comparison is being done between these two things, she and man. These both have one thing in common. What? They both laugh meaninglessly. Ha ha ha, like. So it is simile. Now, the second term is metaphor. Metaphor.
we know now, in simile, direct comparison is made between two things that have one thing in common. Metaphor. In metaphor, we also do comparisons between two things. But here, the comparison is indirect. It is actually implied simile. Here, comparison is done but indirectly. How? Here, we don't use the word like, as, etc. But here, indirect comparison is done. How indirect comparison is done? Lala, for example, Lala Lajpat Rai is the Lion of Punjab. The Lion of Punjab. The Lion of Punjab is actually metaphor. Here Lala Lajpat Rai is being compared with lion. But there is no similarity between Lala Lajpat Rai and lion. But it is hidden quality of Lala Lajpat Rai. As a lion is always fearless, brave, bold, a fighter. So here Lala Lajpat Rai is being compared because he is also brave. He is also fearless and he fought bravely against Britishers. So here Lala Lajpat Rai and lion both are compared together, but it is indirect comparison between Lala Lajpat Rai and lion. So whenever you come across these type of sentences, you have to find out whether it is simile or whether it is metaphor. Simile is very easy to find, and now I think metaphor has become very easy to find for you. Ship of desert. Ship of desert is camel. Ship of desert is also metaphor. That's all for today. Tomorrow we shall discuss some more literary devices, that is figures of speech. That's all for today. Thank you. On your special demand, I'm going to describe all these terms in Hindi. Figures of speech. Figures of speech को हम लोग लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले ये फिगर ऑफ स्पीच है क्या? जब भी हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई पोइम यानी कविता पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत बारी हम लोग ये देखते हैं कि टर्म्स जो असल में लिखा हुआ है वो टर्म अपने असल टर्म से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. जैसे जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में फायर एंड आइस डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि ये फायर जो है वो एक्चुअली लोगों के नफरत और जेलसनेस के लिए हम लोगों ने यूज किया था, और आइस जो था वो इनसेंसिटिवनेस. तो फायर हमारे लिए असल मतलब जो उसका होता है वो ये होता है कि आग है वो जो चीजों को नष्ट कर देता है. पर जब हम लोगों ने पोइम पढ़ा तो देखा कि उसका टर्म, उसका मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग पोइम में जो आ रहा था वो बिल्कुल अलग है. तो यही हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी टर्म्स है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको पोइट क्या करता है वो ऐसे यूज करता है ताकि जो रीडर्स हैं उसके जो उनको पढ़ते हैं उनका अटेंशन पूरे पोइम में रहे और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे. तो ये क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक्सप्रेशन या फ्रेज हो सकता है जिसका मीनिंग जो होता है, जो बुक में दिया हुआ रहता है, जो आप पढ़ रहे होते हैं, उससे उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. जैसे हम उसमें फाइंड करेंगे डिक्शनरी से, तो फायर का जो मीनिंग निकलेगा, पर उस पोइम में उस फायर का मीनिंग क्या था, बिल्कुल अलग था. तो वही इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. तो ये कई तरह के होते हैं, हम लोगों को उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देख रहे हैं वो है सिमिली. सिमिली. सिमिली है क्या? इसमें हम लोग
कंपेयर करते हैं, दो चीजों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो क्या होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उनके बीच में कम से कम वन थिंग, एक चीज कॉमन होना चाहिए। Simile is a direct comparison between two unlike things that have one thing in common. एक चीज कम से कम कॉमन होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी लड़की को देखते हैं या किसी पर्सन को देखते हैं, वो बहुत गोरा सा है, हम उसे बोलेंगे क्या कि बाप रे दूध के जैसा गोरा है या दूध के जैसी गोरी है। तो दूध और जिसको कंपेयर करें वो बॉय या गर्ल है, तो उनके बीच में एक चीज कॉमन है, दोनों का कलर क्या है, व्हाइट है। तो ये सिमिली हुआ, दूध के जैसी। तो यहाँ पे बहुत इजी है सिमिली को पहचान पाना, क्योंकि इसमें वर्ड्स लाइक या एज इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो इसलिए ये सिमिली है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, शी हैज ब्यूटीफुल आईज लाइक अ डियर, एक हिरण के जैसे उसकी सुंदर आंखें हैं। तो हिरण की आंखें भी सुंदर होती है, उस लड़की की भी आंख सुंदर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बट दोनों में आंखों की सुंदरता बिल्कुल कॉमन है, इसलिए ये सिमिली। यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने अंडरलाइन किया है, लाइक वर्ड यूज है, दैट मीन्स ये सिमिली है। एज भी यूज होगा तो वो सिमिली है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑफ मेटाफर। मेटाफर क्या है, ये इम्प्लाइड सिमिली है। इसमें इम्प्लाइड सिमिली क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है दो अलग अलग चीजों में, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है दो अलग अलग चीजों में। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, लाला लाजपत राय इज द लायन ऑफ पंजाब। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, लायन ऑफ पंजाब। तो ये लाला लाजपत राय को हम लोगों ने लायन से कंपेयर किया, पर ना तो लाला लाजपत राय के 4 पैर हैं, ना उनकी पूंछें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे हम लोगों ने उनको क्यों लायन से कंपेयर किया, क्योंकि उनके अंदर ब्रेवरी है। जैसे लायन अपने बहादुरी के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी निडरता के लिए जाना जाता है, वैसे ही लाला लाजपत राय को पूरा वर्ल्ड, स्पेशली हम इंडियंस, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी निडरता के लिए, जो उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट शो किया था, उसके लिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय इज द लायन ऑफ पंजाब, लायन और इनको कंपेयर किया गया। पर यहाँ हम इस लाइन में देखते हैं कि हमें कहीं पे भी ना लाइक ना एज कुछ भी वर्ड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया मेटाफर। जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। तो क्यों शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट जब जैसे ही हम लोगों ने कहा, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये मेटाफर है। क्यों मेटाफर है, क्योंकि जैसे शिप से हम लोगों ने कैमल को कंपेयर किया है। जैसे शिप जो है वो पानी में बड़ा स्मूथ सेलिंग करता है, बहुत स्मूथली आगे बढ़ जाता है, वैसे बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में कैमल जो है वो डेजर्ट में चलता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया। तो ये भी मेटाफर है, क्योंकि हम लोगों ने शिप के जैसा नहीं बोल करके शिप है बोला, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है और ये मेटाफर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।